Bismillahirrahmanirrahim. Begin with the name of Allah who is the most merciful and mighty. Dear student, class 6 definition of set. The collection of well-defined and distinct objects is called set. Sets are generally represented by capital letters of an English alphabet. Here is the word well-defined. Well-defined means that which condition is given in your question. The example is the set of first 10 natural number. First 10 natural numbers start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Look at your example. This example is well defined and distinct. There is no repetition in this set. This is distinct and well defined. If you add 0 with this number set, that is not well defined. For example, if we include 0 with this set, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then the set will be not well defined. No, the set is well defined and distinct, so it is a set. Types of set: proper subset and proper superset. Definition of proper subset. What is proper subset? If A and B are two sets, then every element of set A present in set B. Then we say that A is the proper subset of B. Symbolically, it can be written as A is the proper subset of B. Look at the example. Set A contain elements 1, 2, 3, 4 and set B contain elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the elements of set A present in set B, but set B contains 5, 6 which is not present in set A. So, A is the proper subset of B and B is the proper superset of A. Another definition: improper subset and improper superset. Definition of improper subset: a set which contain all the elements of the original set is called improper subset. For example, if you have a set A equal to 1, 2, 3 and B equal to 2, 1, 3, then we say that A is the improper subset of B and B is the improper subset of A. Also, A is the improper superset of B and B is the improper superset of A. Definition of finite set. What is finite set? Finite sets have one starting and ending point. Our countable set is called finite set. For example, if you have the set of first 5 prime numbers. Prime numbers, what is prime number? Prime number if someone asks a question from you, they define prime number: a number which is divisible by 1 and itself is called prime number. 2 is only even prime number. So, look at your set 2, 3, 5, 7, 11. Example: the set of first 5 prime numbers start from 2, 3, 5, 7, 11. Starting point and ending point is given in your example. So, it is a finite set.
The next definition, what is infinite set? A set is called an infinite set if its items cannot be counted. Infinite set has no ending point. For example, the set of natural number. What the set of natural numbers start from 1. All the sets are infinite numbers. For example, you have whole number. Whole number start from 0, 1, 2, 3, 4 up to so on. It is infinite. Set of integer. Set of integer can be represented by z. Start from 0, comma plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. All these examples are the infinite set. The next definition, what is null set? A set having no element is called empty or null set. It can be represented by pi, which is the representation of empty set. Empty set can be represented by this. Empty set is the subset of every set. Universal set क्या है? Universal set contain all the elements present in other set. Universal set can be represented by capital U. इस सेट में हमारे पास सबसे बड़ा सेट जो है कौन सा है? U में ज़्यादा एलिमेंट्स है, हमारे B में A में कम एलिमेंट्स है और B में भी कम एलिमेंट्स है, लेकिन U जो है ये सबसे बड़ा सेट है, तो इसको हम इसलिए यूनिवर्सल सेट कहते हैं. और A B जो है इसके क्या है? सबसेट्स है. A is the subset of U and B is also the subset of U and U is the superset of A and B. तो U is universal set. इसके बाद हमारे पास डिफिनीशन है यूनियन ऑफ अ सेट. यूनियन ऑफ अ सेट में आप लोगों ने क्या करना है? यूनियन ऑफ अ सेट में आप लोगों ने दो सेट्स को कंबाइन करना है. यू टेक द यूनियन ऑफ ए एंड बी. हाउ यू टेक द यूनियन ऑफ ए एंड बी? सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4. सेट बी में आपके पास एलिमेंट है 5 6 7 8. अगर इस दो सेट को आप दिस सिंबल, ये सिंबल जो है इसको हम यूनियन कहते हैं. यूनियन की डिफिनीशन आप ज़रा देखें कि अ यूनियन सेट इज फॉर्म व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर कंबाइंड. अगर दो सेट्स को हम कंबाइन करें तो इससे हमारे पास यूनियन आएगा. सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4. सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है 5 6 7 8. तो इन दोनों सेट के कम्बिनेशन से हमारे पास यूनियन बनेगा. ए यूनियन बी. अगर इसमें रिपीटेड एलिमेंट्स आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि सेट ए कंटेन एलिमेंट्स 1 2 3 4 and set B also contain elements 3 4 5 6 and you take the union of A union B. So how can you take the union? The value of A is given and you are set 1 2 3 4. Then you put the symbol of union. Then you write the value of B, which is 3 4 5 6. Which number is repeated here? Look at this. 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है. तो पहले तो ये once a time आप लेके एक दफ़ा आपने इसको लिखना है. इस तरह नहीं है कि क्योंकि सेट की डिफिनीशन जब हमने की थी वो ये की थी कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. अगर मैं इसमें 3 4 यहाँ पर भी लिखूँ, 3 4 यहाँ पर भी लिखूँ, तो ये सेट के डिफिनीशन को फॉलो नहीं करेगा, ये फिर गलत होगा. यूनियन तो यहाँ पर रिपीटेड एलिमेंट्स 3 4 है, तो यहाँ पर 3 4 मैंने लिख लिए, फिर 1 2 लिखे, फिर इसके बाद जो है 5 6 लिखे, तो ये आपके पास यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी आएगा. अच्छा, नेक्स्ट डिफिनीशन जो है इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है? इंटरसेक्शन, यू टेक कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए एंड सेट बी. जो आपके पास रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उसको आपने लिखने हैं.
सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट बी में आपके पास एलिमेंट है 3 4 5 6। विच एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी? आपके पास सेट ए और सेट बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? दीज टू एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, सो इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो यूनियन में आप रिमेंबर, आप इस लेक्चर में नोट कर लें कि यूनियन में सेट को आपने कंबाइन करना है, एक सेट में लिखना है, राइट, टू सेट एंड वन सेट। और इंटरसेक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, दो सेट्स के दरमियान जो है आप लोगों ने कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, तो इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं और इसको हम यूनियन ऑफ अ सेट कहते हैं। क्लियर हो गया? इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज फॉर्म when the element of set A are subtracted from a universal set। ये यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में दो सेट्स गिवन है, एक सेट जो है यूनिवर्सल सेट है और अदर सेट इज ए। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन ये भी है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए, यू सब्ट्रैक्ट सेट ए फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, it is called complement of a set. Set U contain elements 1 2 3 4 5, set A contain elements 1 2. You subtract A from U. Which element is common between U and A? 1 2 1 2. This number cancel with each other, your result will be 3 4 5. तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। दोबारा सुने, सेट यू में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2। हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है आप लोगों ने ये करना है कि यूनिवर्सल सेट से आपने सेट ए को माइनस करना है। अगर आपको क्वेश्चन मिल गया कि फाइंड B complement, B complement means U minus A or U difference A। ये दो नोटेशन जो है ये दोनों सेम है। अगर आप माइनस लगाए या डिफरेंस लगाए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू नोटेशन। इसका मतलब यही है कि आपके पास सेट U में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2। तो कॉमन एलिमेंट्स को आप कैंसिल करें, आपके पास यू सेट में जो रहता है ये आपके पास यूनिवर्सल सेट। अगर अनदर एग्जांपल, यू कंटेन एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड सेट ए कंटेन एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी कंटेन एलिमेंट्स 3 4 और आपके पास क्वेश्चन आ गया कि फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो किस तरह आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, U डिफरेंस B। द वैल्यू ऑफ U इज 1 2 3 4 5, डिफरेंस द वैल्यू ऑफ B इज 3 4। तो कॉमन एलिमेंट जो है ये हमारे पास 3 4 कैंसिल हो गए, आपके पास सेट यू में क्या रह गया 1 2 5। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। डिफिनीशन सीखने के बाद आप लोग एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए। इस क्वेश्चन में पार्ट ए में हमारे पास क्वेश्चन है ए कंटेन एलिमेंट्स ए बी, देन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आप देखिए कि
स्मॉल ए सेट ए के अंदर मौजूद है? हाँ, स्मॉल ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए, तो यहाँ पर ये जो है ट्रू, ये ट्रू है। द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, बी प्रेजेंट इन सेट ए। बी आप देखें सेट ए के अंदर मौजूद है, यस, बी सेट ए के अंदर मौजूद है, तो दिस इज ट्रू। ए इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसका एंडिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हो तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट है, या फाइनाइट काउंटेबल सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। हाँ, ए इज अ फाइनाइट सेट, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी इज द मेंबर ऑफ सेट ए। सी जो है सेट ए के अंदर मौजूद है, सी इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए, तो दिस इज फॉल्स। द नेक्स्ट, ए इज एन एम्प्टी सेट। ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। Pi is the proper subset of A. Empty set is the subset of every set. This is true. ये हमारे पास true है। Dear student, this symbol, ये symbol जो है हमारे पास क्या है? An element of a set, और इसको हम कहते हैं belongs to। इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो है ये सेट ए के अंदर मौजूद है या नहीं है, सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। मेंबर है या मेंबर नहीं है, एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है। आप देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पास 1 है, 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए और नॉट। तो सेट ए में देखें कि हमारे पास 1 जो है मौजूद है, हाँ, 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। दिस सेट, ब्रेसेस में जो नंबर क्लोज है, ये नंबर इस सेट के अंदर मौजूद है, बी के अंदर मौजूद है। दिस सेट डज नॉट कंटेन this number, so this statement is false. This number is not present in set B. हाँ, नंबर मौजूद है लेकिन ये सेट नहीं है। अगर ये हम इस तरह B सेट की रिप्रेजेंटेशन इस तरह करें कि 1 2 ब्रैकेट में क्लोज करें, फिर हम लिखे 2, तो फिर ये हमारे पास फिर हम लिखते कि ये मेंबर है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि दिस ब्रेसेस में जो नंबर है ये हमारे पास बी के अंदर मौजूद है। दिस सेट इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, तो हम कहते हैं कि दिस नंबर इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। 1 5 दिस ब्रैकेट इज प्रेजेंट इन सेट ए। हाँ, एलिमेंट मौजूद है, 1 5 मौजूद है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट में क्लोज करें तो फिर ये सेट जो है हमारे पास इसमें नहीं है, तो हम कहते हैं कि दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। 1 जो है सेट बी के अंदर मौजूद है, हाँ, 1 कंटेन इन सेट बी, तो हम कहते हैं कि 1 इज द सबसेट, 1 बिलोंग्स टू बी। 3 सेट ए के अंदर मौजूद है, हाँ है, तो 3 इज बिलोंग्स टू सेट ए। 5 सेट बी के अंदर मौजूद है, 5 डज नॉट कंटेन इन सेट बी, तो हम कहते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। 2 सेट ए के अंदर मौजूद है,
2 is not present in set A. So 2 is not the member of set A. 3 present in set B. So 3 is not present in set B. So 3 is not the subset of B. Part C is, question is given in part C, if A equal to 1, 2, 3, 4, B equal to 1, 3, C equal to 3, 1, D equal to AB, E equal to A, F equal to B, G equal to pi, H equal to 2, 4, 6, then state whether each of the following statement is true or false. सबसे पहले आप ये सिंबल जो है ये याद करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिफाइन किया था कि दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर प्रॉपर सबसेट एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर प्रॉपर सुपरसेट. दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर एम प्रॉपर सबसेट एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर एम प्रॉपर सुपरसेट. क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में आप देखें, B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C. होना चाहिए कि C के एलिमेंट जो है B से ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास B और C के एलिमेंट जो है ये सेम है, तो ये हमारे पास इक्वल सेट्स हो सकते हैं, लेकिन ये B जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ C नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉल्स है. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, D इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ E. D के एलिमेंट जो है ये और ये सेम होने चाहिए. हमने पढ़ा था कि हमारे पास एम प्रॉपर सबसेट वो होते हैं कि इफ सेट B कंटेन एलिमेंट्स AB एंड E कंटेन एलिमेंट्स AB, तो फिर हम कह सकते हैं कि D इज द एम प्रॉपर सबसेट ऑफ E. लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास फॉल्स है. ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है. पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है C इज द प्रॉपर सुपरसेट ऑफ D. होना चाहिए कि 3C के एलिमेंट जो है D से ज़्यादा हो, लेकिन देयर इज नो सेम एलिमेंट्स बिटवीन C एंड D. दोनों सेट्स के एलिमेंट जो है ये डिफरेंट है, तो यहाँ पर कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है. द नेक्स्ट 4 नंबर पार्ट में B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A. 1, 3 कंटेन इन सेट A. यस, 1, 3 जो है सेट A में मौजूद है, और ये प्रॉपर भी है. प्रॉपर इसलिए कि A के एलिमेंट जो है ये B से ज़्यादा है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रू. ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, ट्रू. द नेक्स्ट वन इज 5 नंबर पार्ट. 2 इज द सुपरसेट ऑफ A. होना चाहिए कि ये एलिमेंट इससे ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर ओनली 2 है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास फॉल्स है. G इज अ नल सेट. G जो है ये हमारे पास नल सेट नहीं है, बिकॉज ये हमारे पास सिंगलटन सेट है. सिंगलटन, SINGLETON. सिंगलटन सेट के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, हम ये अभी पढ़ेंगे कि सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग one element is called singleton set. अगर एक एलिमेंट भी हमारे पास सेट के अंदर मौजूद है
तो उसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं कह सकते, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। द नेक्स्ट वन इज 3 1 is the proper subset of A. Look at 3 1 contain in this set, 3 और 1 इस सेट में है, लेकिन इससे A सेट में 3 और 1 के अलावा और नंबर्स भी है, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। और A जो है इसको हम प्रॉपर सुपर सेट ऑफ दिस सेट कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। पार्ट डी, डियर स्टूडेंट, पार्ट डी में आप लोगों ने बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ सेट आर दीज। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास n इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन इज डैश। ब्लैंक में ऑप्शन में आपको गिवन है कि ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है और नल सेट है। तो n इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट काउंटेबल अगर सेट हो तो फिर हमारे पास, अगर हम n के साथ यहाँ पर एंड में 100 लगाएं तो फिर ये फाइनाइट बन जाता है। अगर अप टू सो ऑन है तो ये फिर इनफाइनाइट नंबर्स है, क्योंकि हमारे पास हमें पता नहीं है कि ये कितने नंबर आगे जाके ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अच्छा। द नेक्स्ट वन a इक्वल टू 0 इस ऑप्शन में आपको गिवन है अ नल सेट, एन इनफाइनाइट सेट और अ फाइनाइट सेट। तो ये अगर आप अभी हमारे पास ऑप्शन में है कि ये हमारे पास नल सेट है, नल सेट तो नहीं है, क्योंकि नल सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट्स भी ना हो। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। इनफाइनाइट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 1 2 3 अप टू 1000। ऑप्शन में गिवन है एन इनफाइनाइट सेट, अ नल सेट, अ फाइनाइट सेट। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। बिकॉज starting point and ending point is given in this question। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास a इक्वल टू दिस इज, हमारे पास ऑप्शन में गिवन है अ नल सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, अ प्रॉपर सबसेट। तो ये हमारे पास है नल सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की डिफिनीशन, नल सेट की डिफिनीशन, नल और एम्प्टी सेट दोनों हम कह सकते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि एम्प्टी और नल सेट में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नल एंड एम्प्टी सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। अच्छा, नेक्स्ट वन इज a इक्वल टू सेट ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमारे पास कौन से है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो ये हमारे पास फाइनाइट है, क्योंकि ये काउंटेबल है। ए फॉर एग्जांपल हमारे पास है a इक्वल टू a b c अप टू z। तो ये हमारे पास फाइनाइट है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। अच्छा, द लास्ट वन इज w इक्वल टू 0 1 2 3 and n equal to 1 2 3। w is of dash। तो हमारे पास ऑप्शन में है a subset, a proper superset, a proper superset। तो ये हमारे पास पार्ट सी और पार्ट ई में कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पार्ट सी एंड पार्ट ई, सो पार्ट ई इज योर होमवर्क। द नेक्स्ट question is F. Solve the following. Universal set is given, which is 1 2 3 up to 10,
set A is given which is 1 3 5 7 9, set B is given which is 2 4 6 8 10, and set C is given which is 1 3 5 6 8. The question is find A union B. किस तरह आप दो सेट्स का यूनियन जो है आप लेंगे? यूनियन के लिए आपने ये करना है कि A यूनियन B पहले आपने लिख लिया. You write the value of set A which is given in the question, which is 1 3 5 7 9. 1 3 5 7 9. Now you put the value of U, then again you put the value of B which is 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 10. Then you combine these two sets. ये दोनों सेट्स हमने क्या करना है? कंबाइन करना है. अगर सेट में आपके पास रिपीटेड एलिमेंट्स आ जाए तो रिपीटेड एलिमेंट्स को आपने एक दफ़ा लिखना है, और नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स आ जाए तो उन दोनों सेट्स को आपने एक ही सेट में लिखना है. जिस तरह हमारे पास यहाँ पर 1 है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है. सेट ए एंड सेट बी को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए एंड सेट बी. तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है और इसका यूनियन जो है इस तरह हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमारे पास A यूनियन B आ गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट हमने किस तरह फाइंड आउट करना है? A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है सोल्यूशन A कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल टू U डिफरेंस A. यूनिवर्सल सेट से हमने सेट A को माइनस करना है तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा. ठीक है. यूनिवर्सल सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डिफरेंस या माइनस द वैल्यू ऑफ A is given in the question 1 3 5 7 9. जो एलिमेंट्स कॉमन है उसको आप कैंसिल करें. 1 1 के साथ कैंसिल करें, 3 3 के साथ कैंसिल करें, 5 5 के साथ कैंसिल करें, 7 7 के साथ कैंसिल करें, 9 9 के साथ कैंसिल करें. विच एलिमेंट इज लेफ्ट हियर इन द यूनिवर्सल सेट? 2 4 6 8 10. तो ये आपके पास A कॉम्प्लीमेंट आ गया. ठीक है. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया पार्ट 3 में B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है? सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने C कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है. तो पहले वी फाइंड द वैल्यू ऑफ C कॉम्प्लीमेंट. C कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U डिफरेंस C. The value of U is given in the question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Difference, the value of C is given in the question which is 1 3 5 6 8. 1 3 5 6 8. Now you cancel the common number between U and C. 1 3 5 6 8. 1 3 5 6 8. Which element is left here?
2, 4, 7, 9 and 10. Now you take the intersection between B intersection C complement. अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमने C कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, क्योंकि अगर C कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट ना करते तो आप ये सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो C कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट किया, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अभी इसके साथ B का इंटरसेक्शन ले लें। द वैल्यू ऑफ B इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Put the symbol of intersection. Then you write the value of C complement, which is 2, 4, 7, 9, 10. Which element is common between these two sets? कौन कौन से एलिमेंट जो है ये कॉमन है? Look at this, 2 is here, 2 is here, 6 is here, 6 is here. No, 10 is here, 10 is here. तो आपके पास इसका इंटरसेक्शन आ गया 2, 4, 10. ये आपके पास B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 4, ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। ये डियर स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5, वो हमारे पास है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके पास A इंटरसेक्शन C आता तो ये तो बहुत आसान होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशन है कि A कॉम्प्लीमेंट और C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A कॉम्प्लीमेंट which is U minus A. The value of U is given, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Difference, the value of A is given, which is 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9 cancel with each other. 1, 3, 5, 7, 9. Which element is left here? 2, 4, 6, 8, 10. No, again you find the value of C complement. C complement equal to U difference C. पहले हमने क्या फाइंड आउट किया? A complement फाइंड आउट किया। Then you find the value of C complement. C complement फाइंड आउट करें। U के लिए वैल्यू लिखें, हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Difference, the value of C is 1, 3, 5, 6, 8. जो एलिमेंट्स आपके पास कॉमन है उसको कैंसिल करें। डिफरेंस का मतलब यही है कि इससे आप सब्ट्रैक्ट करें, जो कॉमन है वो उसको कैंसिल करें। 1, 1 के साथ कैंसिल हो गया, 3, 3 के साथ कैंसिल हो गया, 5, 5 के साथ कैंसिल हो गया, 6, 6 के साथ कैंसिल हो गया, 8, 8 के साथ कैंसिल हो गया। विच एलिमेंट इज लेफ्ट हियर? एन यू। 2, 4, 7, 9, 10। अभी आपके पास दो सेट्स आ गए। एक ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने वैल्यू फाइंड आउट किया, दिस इज सेट ए, एंड ये सी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 2। तो आपने 1 और 2 के दरमियान क्या फाइंड आउट करना है? इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान, ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने सेट फाइंड आउट किया है, वो है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10।
इंटरसेक्शन का सैम्पल डालें. नो यू राइट द वैल्यू ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट विच इज 2, 4, 7, 9, 10. Which element is common between A complement and C complement? 2 is common, 4 is common, nothing is common here. No, 2 common है और 4 common है. तो 2 और 4 के अलावा कोई नंबर भी हमारे पास कॉमन नहीं है. तो इसका आंसर है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास है 2, 4. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 5 F में 1, 4 एंड 6 जो है ये सेम मेथड से है. तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है.